السلام علیکم دوستو، میں ہوں راؤ قمر رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے والد ایک معمولی مزارع تھے، بھلا ہم کہاں اور تعلیم کہاں۔ جب میں 16 سال کی تھی تو والد نے میری شادی اپنے ایک رشتہ دار کے بیٹے سے کر دی۔ یہ لوگ بھی ہماری طرح غریب تھے، سسر بوڑھے تھے اور شوہر ایک زمیندار کی زمین پر ہل چلاتا تھا۔ ہماری گزر بسر بمشکل ہوتی تھی کیونکہ سسر کی 6 بیٹیاں تھیں اور 2 یتیم بھتیجیاں بھی ساتھ رہتی تھیں۔ اتنے بڑے کنبے کا بوجھ اکیلا میرا شوہر ہی اٹھاتا تھا۔ جس عمر میں میری شادی ہوئی مجھے اپنے آپ کا بھی ہوش نہ تھا اور نہ اتنی عقل کہ زندگی کے مسائل سمجھ سکتی۔ میں تو زندگی کو بس ایک محنت و مشقت کی چکی ہی سمجھتی تھی۔ ہمارے پاس بوسیدہ کپڑے ہوتے تھے، صبح کسی سے روٹی ملتی اور دوپہر میں پیاز کے ساتھ کھانا، بس یہی کچھ ہمارے پاس تھا۔ البتہ رات کو دودھ کا 1 گلاس ہر ایک کو مل جاتا تھا کیونکہ ہمارے خاندان میں گائے کی حیثیت ایک فرد جیسی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں صرف 3 دن تک دلہن بنی رہی۔ اس کے بعد وہی کھیتوں میں جا کر کام کرنا، کنویں سے پانی بھر کر لانا، گھاس کاٹنا اور تندور پر روٹیاں پکانا۔ جو کچھ میکے میں تھا وہی سسرال میں ملا۔ 1 سال کے اندر اللہ نے ایک بیٹا بھی دے دیا۔ بیٹے کی پیدائش پر ساس بہت خوش تھی۔ اس نے اس کا نام کمال خان رکھا، لیکن گھر میں سب پیار سے اسے کملا کہتے تھے۔ کملا 1 سال کا تھا جب ایک روز ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں کنویں پر پانی بھرنے گئی ہوئی تھی۔ اس وقت کنویں پر کوئی بھی نہ تھا۔ یہ کنواں پگ ڈنڈی کے پاس تھا جہاں سے سڑک آ کر ملتی تھی۔ سڑک پر ایک کار کھڑی تھی اور دلاور خان کار سے اتر کر میری طرف آ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے کہا، گھبراؤ نہیں، مجھے پانی چاہیے۔ اپنی گاگر میری کار کے پاس لے چلو، کار گرم ہو گئی ہے، اس میں پانی ڈالنا ہے۔ میں دلاور خان کو پہچانتی تھی۔ ایک بار وہ ہمارے زمیندار کے گھر بطور مہمان آ کر ٹھہرا تھا۔ اس وقت میں اسے روٹی دینے کے لیے اوطاق میں گئی تھی۔ تب میں چھوٹی تھی، مگر اس کے اجلے سفید براق کپڑے اور خوبصورت چہرہ میرے ذہن پر نقش ہو گیا تھا۔ میں اس کی مسحور کن شخصیت سے بہت پہلے بچپن میں ہی مروب ہو گئی تھی۔ کار میں پانی ڈالنے کے بعد اس نے انجن بند کر دیا اور مجھ سے پوچھا، اس خدمت کے صلے میں تمہیں کیا چاہیے؟ میں چپ کھڑی اپنا آنچل انگلیوں سے مروڑتی رہی تو وہ بولا، کار میں بیٹھو گی، سیر کرو گی؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی کار کا دروازہ کھولا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بھی ایسے اس کی گاڑی میں جا بیٹھی جیسے کسی نے جادو کر دیا ہو۔ دلاور خان نے گاڑی چلا دی اور پھر نہ روکی۔ میں اسے پسند آ گئی تھی۔ اس نے اسی لمحے طے کر لیا تھا کہ جو بھی ہو وہ مجھے حاصل کر کے ہی رہے گا۔ وہ مجھے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ وہ بہت بڑا زمیندار تھا۔ میرے رشتہ دار، والد، چچا، سسر اور شوہر کسی میں ہمت نہ تھی کہ اس کے راستے میں آتے۔ انہوں نے تھانے میں رپورٹ درج کرانے کی کوشش کی تو تھانے والوں نے انہیں آنکھیں دکھا کر بھگا دیا۔ یہ سارا علاقہ دلاور خان کا تھا، بھلا کون اس کے خلاف رپورٹ لکھتا؟ تھانے والوں کے لیے یہ کوئی انوکھی بات نہ تھی کہ ایک بڑا زمیندار ایک غریب مزارے کی لڑکی کو اپنے گھر کی زینت بنانے کے لیے اٹھا لے گیا تھا۔ دلاور خان کی حویلی دیکھ کر میں تو حیران رہ گئی۔ اس قدر شاندار گھر میں نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہ دیکھا تھا۔ اس کی بیوی بانجھ اور بیمار تھی۔ حالات میرے لیے بہت سازگار تھے۔ دلاور خان کو اولاد کی تمنا تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، گوہر دیکھو، تم میرے گھر میں قدم رکھ چکی ہو، تمہارا واپس جانا اب میری بے عزتی ہے، یہ ناممکن ہے۔ میں تمہیں مذاق میں نہیں لایا، مجھے پہلی نظر میں ہی تم بھا گئی تھی۔ میں تم سے شادی کروں گا، یہ تمہارے لیے بڑی عزت کی بات ہونی چاہیے۔ البتہ ایک مسئلہ ہے، تمہارا بیٹا، اسے تمہیں بھلا دینا ہوگا۔ میں اس آدمی کو کیا کہتی جبکہ وہ طاقتور تھا اور میں کمزور۔ وہ جو کہہ رہا تھا اسے وہ جبر سے بھی منوا سکتا تھا۔ یہ میری خوش بختی تھی کہ اس نے مجھے بیوی بنانے کا ارادہ کیا۔ اگر وہ یوں ہی دل لگی کر کے چھوڑ دیتا تب بھی میں یا میرے والدین اس کا کچھ نہ بگاڑ سکتے تھے۔ میرے سسر، والد اور شوہر کو بلا کر اس نے اپنا ارادہ ان پر ظاہر کیا اور میرے شوہر کو حکم دیا کہ وہ مجھے طلاق نامہ لکھ دے۔ یہ سب جانتے تھے کہ اگر انہوں نے سیدھے طریقے سے دلاور خان کی بات نہ مانی تو وہ ان پر عرصہ حیات تنگ کر سکتا تھا۔ غریب تو اپنی غربت سے مجبور ہوتا ہے اور یہی میرے وارثوں کی بے بسی تھی۔ انہوں نے دلاور خان کی پیشکش قبول کر لی
और काफ़ी रकम लेकर तलाक नामा लिख कर दे दिया। अब मैं आज़ाद थी। दिलावर खान मुझसे निकाह कर सकता था। मैं कमसिन थी और वो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था। उसका रोब मुझ पर ऐसा तारी था कि जो वो कहता मैं बिला चूं चरा मान लेती। निकाह के बाद उसके घर में मेरी जो हैसियत मुतय्यन हुई उसका तो मैं तसव्वुर भी ना कर सकती थी। मैं सारे घर की मालिक थी। दिलावर खान मुझ पर जान निछावर करता था। उसने मुझे सोने से पीला कर दिया था। मैं जो कड़ी धूप में खेतों में जलती थी, आज ठंडी हवेली में सुकून और आराम की नींद सोती थी और नौकरानियां मेरे आगे पीछे फिरती थीं। मैं सचमुच भिखारन से मलका बना दी गई थी। भला ऐसे नसीब किसी लड़की के हो सकते हैं? शायद करोड़ों में कोई एक ही ऐसी होती होगी। मैं जितना अपनी किस्मत पर नाज करती कम था। मैं गुर्बत के दहकते हुए जहन्नुम से निकलकर दिलावर खान जैसे बड़े आदमी की इज्जत बन गई थी और उसके प्यार की छांव तले आ गई थी। मेरे मैके वालों ने मुझसे फिर कोई नाता ना रखा। एक माँ थी जिसने मेरा साथ ना छोड़ा। वो चोरी छुपे मिलने आ जाती और कभी कभी मेरे बेटे कमले को भी अपने दुपट्टे की ओट में लपेट कर ले आती थी। जब तक मैं दिलावर खान के बच्चे की माँ ना बनी, दिलावर ने मेरी माँ के आने जाने पर कोई एतराज़ ना किया। लेकिन जब उसके घर में मैंने पहले बेटे को जन्म दिया तो फिर उसने मुझे बता दिया कि मुझे अपने मैके से अब कोई ताल्लुक नहीं रखना है, ख़ास तौर पर पहले शौहर के लड़के के लिए। इस घर में कोई जगह नहीं है। पहले मैं सिर्फ दिलावर खान की महबूबा थी, अब उसके बेटे की माँ बन चुकी थी और ये जंजीर बाकी सब जंजीरों से ज़्यादा मजबूत थी। अब मैं कमले को याद करके तड़पती थी मगर उससे मिल नहीं सकती थी। वो मेरा बेटा था, मैं उसे कैसे भूल सकती? याद करके तड़पती मगर मिल ना सकती। वो मेरा अपना था, मैं उसे कैसे भूल सकती थी? मेरा एक बेटा तो सोने के पालने में झूल रहा था और दूसरे को ज़मीन पर बिछाने के लिए दरी का टुकड़ा भी मुयस्सर ना था। कमले के लिए चोरी छुपे कुछ ना कुछ रकम भेजा करती थी मगर उससे मेरी तसल्ली ना होती थी। वो हरदम याद आता था। उससे जुदाई का मुझे बहुत गम था, लेकिन इससे भी ज़्यादा गम तो इस बात का था कि वो असरत के हाथों ख़त्म हो रहा था और मैं मखमली बिछोनों पर सोती थी। शायद बाज़ गम तकदीर में अटल होते हैं, मौत की तरह। जितनी भी खुशी मिले वो गम नहीं मिटते, जब तक सांस चलती है साथ रहते हैं। ऐसा ही गम मुझे अपने बेटे कमले की जुदाई का था। जिंदगी के दिन बसर होते रहे। दिलावर खान के घर मुझे हर तरह का सुख और आराम मिला। उस शख्स ने कभी कोई दुख ना दिया। मेरी हर ख्वाहिश उसने पूरी की। मैंने भी उसके एवज़ उसके हर हुक्म की तामील की। एक इताअत गुजार बीवी बनकर उसके दिल को सुकून और आराम पहुंचाया। यहाँ तक कि कमले को भी भुला दिया और अपनी ममता को भी मौत की नींद सुला दिया था। दिलावर खां के घर मैंने 5 बेटों को जन्म दिया। मेरे काले बाल उनकी मोहब्बतों की दूधिया रोशनी में सफ़ेद हो गए। दिलावर खान ने सारी ज़मीन अपनी ज़िंदगी में ही मेरे नाम कर दी थी। वो मुझसे कहा करता था, क्या खबर गौहर, तेरे लड़के तुझसे वफा करें या ना करें, इसलिए मैं जायदाद इनके नाम नहीं करूँगा, मेरे बाद तो खुद इनमें बंटवारा करती रहना। दिलावर खान उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था। वो मुझसे पहले ही मौत की राहों का मुसाफिर बना। उसके मरने के बाद पता चला कि तन्हाई और बेचारगी क्या शय होती है। जब तक वो जिंदा था किसी बात पर पाबंदी न थी। अब हर बेटे की खुशनुदी की परवाह करना पड़ती थी। मेरे सब बेटे अपने अपने मशगलों और खुशियों में गुम थे। उन्हें मेरी तन्हाई और बेवगी का ज़रा भी एहसास न था। बड़ा बेटा शादी करके अलग हो गया और कभी कभार ही मेरे पास आता। उससे छोटा भी अपनी बीवी का ग़ुलाम बन गया। तीसरा हैदराबाद और चौथा नवाबशाह में पढ़ता था। 5वां और सबसे छोटा बेटा घर पर ही रहता था, मगर घर बार और काम काज से कोई दिलचस्पी ना थी। वो सारा दिन कार लेकर घूमा करता और अक्सर रातों को घर से गायब रहता। दोस्तों ने उसका दिमाग ख़राब कर दिया था। किसी को खातिर में ना लाता और मुझसे भी सीधे मुंह बात ना करता। पढ़ाई से उसे कोई रग़बत न थी। मैट्रिक भी उसने बड़ी मुश्किल से पास किया। जिस कदर सुख मुझे दिलावर खान की दौलत और ज़ात से मिला, इतना ही दुख उसके बेटों ने पहुंचाया। मुझे इन 5 से बेहद मोहब्बत थी। ये मेरे लख्ते जिगर थे। अब मैं बूढ़ी हो चुकी थी। 5 बेटे दिलावर खान की तरह माशाअल्लाह का दावर और जवान थे। मैं उन्हें देखकर जीती थी। दिल यही चाहता था कि एक पल के लिए भी ये मेरी नज़रों से ओझल ना हो। मेरा उनके सिवा कौन था?
मैं का छोड़े मुद्दत गुजर चुकी थी। वो गरीब मज़ारे थे, दिलावर खान की हवेली में उनके लिए जगह कहाँ थी। मैं उनके लिए और वो मेरे लिए मर चुके थे। दौलत की तफरीक ने सारे रिश्ते नाते मुद्दतों पहले ही तोड़ दिए थे। जब तक दिलावर खान जिंदा रहा उसने मुझे तन्हाई का एहसास ना होने दिया। दिलावर खान मोहब्बत का एक ऐसा समंदर था जिसमें डूबकर मैंने अपना माजी भुला दिया था, यहाँ तक कि अपनी कोख के जाय को भी भुला बैठी थी। हालांकि वो मुझे भूलता न था। हर लम्हा कदम कदम पर कमले की याद मेरे दिल में चुटकियां काटती रहती थी। मगर इन 5 बेटों ने मुझे उसकी जानिब जाने ना दिया। मुझे तो उनसे ये बात भी छुपानी पड़ी थी कि उनका एक भाई और भी है, क्योंकि वो उनके सौतेले बाप का बेटा था, एक गरीब हारी का बेटा था। वो हारी जवान के मज़ारे होते थे। ये कैसे किसी नौकर को अपना भाई कहलवाना पसंद कर सकते थे। वो बेचारा क्या इनकी बराबरी करता। लेकिन मैं माँ थी, कब तक अपने अंदर की औरत की आवाज़ को दबा कर रखती। अब जबकि ये लड़के मेरी परवाह न करते थे, मुझे उस बेटे की और भी याद सताती थी जो मुझसे सारी उम्र जुदा रहा था। मेरी कोई बेटी भी न थी जो गमगुसार बनती। बड़े बेटे जो शादीशुदा थे वो कभी ईद त्यौहार पर पल दो पल के लिए आ जाते, वरना उनके घर भी दूर थे। मैं वहाँ जा नहीं सकती थी। दिलावर खान की भी हिदायत थी कि तुम कभी बहुओं के दर पर खुद चलकर न जाना, इससे तुम्हारे रुतबे में कमी आएगी और वो किसी दिन तुम्हें बेआबरू भी कर देंगी। छोटे तीनों बेटे हमेशा उस वक्त मेरे पास आते जब उन्हें रकम की ज़रूरत होती। बैंक से रुपया निकलवाने के लिए मेरे दस्तखत ज़रूरी थे। बस उसी लम्हे वो मेरी खुशामद करते थे, वरना वो मेरे दुख सुख के साथी नहीं थे। कुछ दिनों से मुझे कमले की याद बड़ी शिद्दत से आ रही थी। जब तक दिलावर खान जिंदा रहा मैं उससे मिलने पर मजबूर रही, क्योंकि वो किसी हारी मज़ारे या नौकर से मेरा रिश्ता बाकी न रहने देना चाहता था। लेकिन अब मैं आज़ाद थी। अब तो हरदम यही जी चाहता था कि किसी तरह पर लग जाएं और मैं उड़कर कमले के पास जा पहुंचूं। आखिरकार एक दिन मैंने अपने सारे बेटों को बता दिया कि मैं अब तुम्हारे भाई कमले के बगैर नहीं रह सकती और उससे मिलना चाहती हूँ। मेरा ये कहना था कि सारे लड़के सीखपा हो गए और खफा होने लगे और कहा कि मैं ऐसी बात ही मुंह से ना निकालूं जो उनके ख़ानदान के वक़ार के शायान शान नहीं। मैं मायूस हो गई। सोचा कि इस तरह तो कभी अपने कमले से ना मिल सकूंगी, लिहाजा मैंने उन सब से छुपकर ही कमले से मिलने का मंसूबा बनाया। जब पहली बार उसके सामने गई तो वो हक्का बक्का रह गया। जल्दी से चारपाई से उठकर मेरे कदमों में बैठ गया। उसके आंसू मेरे पैरों पर गिरने लगे। वो इतना रोया कि मेरा दामन तर हो गया। बड़ा दुख हुआ उसकी हालत देखकर। मेरी ममता ने खुद से शर्मा कर मेरे ही दुपट्टे के पल्लू में मुंह छुपा लिया। कैसी माँ थी कि मैं इतने तवील अरसे तक अपने लख्ते जिगर को फरामोश किए रही। मगर कमले ने मुझे एक लम्हे को ना भुलाया। भीगी आवाज़ में बताया कि मेरी हवेली के उसने हज़ारों चक्कर काटे, मुझसे मिलने के बड़े जतन किए, खान की ज़मीन पर नौकर होने की कोशिशें की, सिफारिशें कराईं, मगर दिलावर खान ने मुझ तक इन इत्तलात को पहुंचने ना दिया। मेरे बुरे नसीब के वो मुझसे ना मिल सका। माँ, मैं तो तेरी सिर्फ एक झलक देखने को अपनी जान तक दे सकता था। वो सिसक सिसक कर फरियाद कर रहा था और मेरे दिल के हर जख्म पर, उसकी हर सिसकी पर लहू लहू हो रहा था। उस रोज़ मैं भी जी भर कर रोई थी। वो मुझे जाने ना देता था। बार बार पाँव पकड़ कर कहता था, माँ, अल्लाह के लिए अब तू ना जा। मेरे दिल में ये बड़ी हसरत है कि तू अब मेरे ही साथ रहे और मैं उम्र भर तेरे कदमों में बैठा रहूं, आखिरी दम तक तेरी खिदमत करूं। माँ, मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन हूँ तो तेरा ही बेटा। तेरे लिए इतना कमा कर ले आऊँगा कि तू आराम से ज़िंदगी के बाकी दिन गुजारेगी। कमले का प्यार, उसकी बातें, उसकी हसरतें और भोलापन, हर बात मेरे दिल में तराजू हो रही थी। उसके मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े और खुरदरे हाथ पांव, उसका देहातीपन, हर शय मेरे सीने में जख्म डाल रही थी। मेरे 5 बेटे तो ऐशो आराम में थे। हर एक के पास अपनी गाड़ी, अपना मकान, अपनी ज़मीन थी, मगर मेरे इस फूल के तन पर कपड़े तक सालिम न थे। मैं उसकी बदनसीबी पर हैरान थी कि जिसने कमले से माँ बाप का प्यार छीन लिया था, जिसको सख्त मुशक्क़त के बावजूद पेट भर खाना नसीब ना था, बड़ी मुश्किल से उसने मुझे जाने दिया। दूर तक छोड़ने पीछे आया
बार बार इल्तिजा करके कहता, माँ अल्लाह के लिए अब ना जा, मेरी गुर्बत से ना डर, मैं इतनी मेहनत करूँगा कि तू सूखी रहेगी। मैं घर लौटी तो मेरे बेटे मुझसे दो दो हाथ करने आ गए। उनको इल्म हो गया था कि मैं कमले से मिलने गई थी। सभी ने मुझसे झगड़ा किया और अपनी जायदाद तलब की जो उनका बाप मेरे नाम कर गया था। वो अब मेरा शरई हक भी मुझे देना ना चाहते थे। शायद उनको ये खतरा महसूस हुआ कि मैं कहीं अपने हिस्से की जायदाद कमले को ना दे दूं। मैंने बगैर किसी हीलो हुज्जत ये भी उन पांचों में तकसीम कर दी, क्योंकि ये उनके बाप का विरसा था। मेरे बाद भी ये इन्हीं को मिलना था। उसके बाद उन्होंने फैसला सुना दिया कि मैंने चूंकि उनकी इज्जत का ख्याल नहीं किया और मामूली हारी के घर चली गई, लोगों को भी इल्म हो गया कि उनका सौतेला भाई भी कोई है जिसके बाइस उनकी बेइज्जती हुई, लिहाजा वो अब मेरे पास नहीं आएंगे। मुझे बड़ा धचका लगा। मेरे अपने बच्चे जिनको मैंने जन्म दिया, पाला पोसा, आज दौलत के घमंड में मुझे ही आंखें दिखा रहे थे, इसलिए कि मैं आइंदा हमेशा के लिए कमले को भूल जाऊं और कभी दोबारा उससे मिलने की जुर्रत ना करूं। वो ये भी भूल गए कि जैसे मैं उनकी माँ हूँ वैसे ही उसकी भी हूँ। अब जबकि मैं अपने पहले बेटे से मिल चुकी थी, ममता की मुरझाई कौंपल फिर से ताज़ा हो गई। अब मैं उसे मिले बगैर नहीं रह सकती थी। मैंने भी फैसला कर लिया कि जवानी मैंने अपने इन बच्चों को दी जो दिलावर खान के बच्चे थे, तो बुढ़ापा अपने गरीब बेटे को दूंगी। मैंने फिर भी ईद के दिन तक इंतज़ार किया। जब ईद के रोज़ भी ये पांचों मेरे पास ना आए तो दिल बुरी तरह टूट गया और फिर मैंने दिलावर खान के घर को छोड़ देने की तैयारी बांध ली। जो नकदी और जेवरात थे वो मैंने उन लड़कों के ताया को बुलाकर उनके हवाले किए कि ये पांचों में बराबर तकसीम कर दें, ताकि मेरे बाद वो इन चीज़ों के लिए भी ना लड़ते रहें। मेरा उम्रा करने का इरादा है और ज़िंदगी और मौत का पता नहीं। उन्होंने ऐसा ही किया। अमानतें वारिसों को पहुंच गईं। मैं 2 जोड़े कपड़ों के साथ कमले के घर आ गई और फिर हम उम्रे पर चले गए। मेरे बेटे ने कुछ पैसे अपनी मेहनत से जमा किए थे, वो अपनी रकम से मेरे हमरा गया। कमला तन्हा रहता था, उसका बाप मर चुका था। अब उसको मेरी और मुझे उसकी ज़रूरत थी। मैं जानती थी कि दिलावर खान की औलाद होने के नाते वो उस गरीब को कभी अपना भाई तस्लीम ना करेंगे, क्योंकि वो कमले की समाजी कमज़ोरी हैसियत को अपनी इज्जत पर धब्बा समझते थे। लिहाजा मैं खुद उनको उससे दूर रखना चाहती थी। कमले ने बाप का 5 मरले का घर बेच दिया और हम शहर आए। यहाँ उसने मेहनत मजदूरी की और अपनी हलाल की कमाई से मेरा पेट पालने लगा। मैं जानती थी कि मेरे लड़कों का हिस्सा भी आना चाहिए और वो ज़रूर एक दिन खुद मुझसे आ मिलेंगे, मगर वो ना आए। उनकी जुदाई का गम ज़रूर है, लेकिन अब मुझे अपनी ममता की दौलत अपने गरीब बेटे पर निछावर करनी है, ताकि मैं उसके कच्चे घर में इज्जत और सुकून से मर सकूं। ये भी है कि एक खोया हुआ बेटा मिल गया, लेकिन मेरे 5 बच्चे खो गए। पहले मैं कमले के लिए बेसुकून थी, अब उनके लिए बेसुकून रहती हूँ। औरत की भी क्या किस्मत है, इसको कहीं सुकून नहीं। खुश भी हो तो औलाद का कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है। तो नाजरीन, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।